कई बार ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग को लेके एक एटीट्यूड में एक बहुत बड़ा गैप है, जो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ नॉट अ गारंटीड थिंग. परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ बेसिकली अ वे यू कैन पुट योर प्रोडक्ट आउट देयर. एआई का जो यूज़ है वो सही तरीके से किया जा सकता है, और हो बट रहा है, एट द हाँ, लोग बहुत लोग हैं जो सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कर रहे हैं. और उससे ग्रो हो रहा है, हम्म, ठीक है। बट वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसका रॉन्ग वे में यूज़ कर रहे हैं. मिसयूज़ कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट गूगल एड्स, यू ऑल्सो हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ इट. गूगल एड्स में डिस्कवरी कैंपेन करके एक कैंपेन टाइप है, ओके. राइट? वो परफॉर्म नहीं करता है. Hi, welcome back to the channel. So today I am collaborating for the first time with another YouTuber. So I have Grow with Huzef with me. Hi Huzefa. हाय बिलाल, हाउ आर यू? I am good. So would you like to tell about your channel and what kind of content you are creating? Sure. So basically, my name is Huzaifa Sayyed, and I'm also a performance marketer just like you, and having an experience of 3 years, 5 months. And That's a very precise. yeah, I always like to be very precise, with even with the data as well. If I'm into marketing, so if I'm doing the performance marketing for any brand, so I like to be very precise with the data, what is happening exactly over there. Apart from this, I'm starting my own channel, which is Grow with Huzaif. There actually I'm putting content about sales, about marketing, how people actually learn marketing things, new strategies, how they can actually grow themselves in marketing. Okay. And if someone is business owner or they are actually want to be an entrepreneur, how they can have a marketing mind, how to have a sales mind, those kind of content. Correct. So Huzaifa, general thing which comes in my mind, because very recently I have also been through this journey of figuring out how to start, right? And you are exactly in that journey. So you have your years of experience with you. You have done so many things around Google ads, around Facebook ads, or different performance marketing things. But now you're gonna translate all those experience into content, right? Yes. What is in your mind right now? What are you thinking? What is going to happen? How are you going to strategize your content journey? See, what is happening in market right now, everyone is making some kind of content, and they are not actually putting all their knowledge. They are just giving the basic thing and actually selling the courses in end. So that is not what I'm exactly looking for. I'm looking to give pure value to the people. See, what happened when I had started my journey in marketing, I suffered a lot. You suffered a lot. Yeah, I suffered a lot to get a right knowledge. Okay. Yeah. So what was happening when I had started learning about the digital marketing stuff? There were different institute was there, and they were charging high ticket, like 1,80,000. So Okay. even in Andheri, if you go, I won't take some name, but there are some institute they're actually charging 1,10,000 for only 2 to 3 months of digital marketing course, which anyone can learn for 500 rupees or 1,000 rupees in Udemy if he's doing on his own. Okay. Yeah. So what I am looking forward to give knowledge to the people who actually want to learn digital marketing and make their career in this industry. So basically, you are saying what challenges you faced. Yes, that is Generally, what I want to solve for the people. you want to basically solve for that, Yes. right? So, but there are many channels. Yeah. If you'll see on YouTube, if you just search Google Ads, Facebook ad, I'm sure lakhs of videos will come. Correct. And out of which there are some names which are already Very giving well. very good Yeah. quality content. Yes. So you starting in 2023 with a new channel, anything new that you want to do, anything different that you are thinking to do? See, what happened actually? The people who have actually started making the content in 2020 and they have a good playlist in YouTube for tutorials for Google Ads, Facebook Ads, it has actually expired now. So someone has actually made a 2020 the Facebook ads tutorials. That is not going to apply right now. The industry has changed, right? There are so many changes in Facebook ads happen. Not only that, now AIs are coming, right? What are coming? AI, आर्टिफिशियल AI, इंटेलिजेंस. okay. सो क्या हो रहा है अभी मार्केट में,
AI टूल्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कैसे आप AI टूल्स इस्तेमाल करके अपनी मार्केटिंग जर्नी को अच्छा कर सकते हो, ये वाली चीज़ है। अगर हम AI से के बारे में ज़्यादा फोकस करें, अगर मार्केटिंग चीज़ों में अगर हम बात करें, सो वहाँ पर ना ऐसा है कि पहले एक कंटेंट राइटर होता था, कॉपी राइटर होता था। फॉर एग्जांपल उसे किसी एक कॉपी लिखनी होती थी कोई ब्रांड के लिए, फर्स्ट ही डू रिसर्च, ओके, देन वो ब्रांड टोनैलिटी को समझता था, राइट। देन वो सोचता है कि मैं कैसे फ्रेम करूँगा, देन ही स्टार्टेड राइटिंग द कॉपीज, राइट, ठीक है। इस प्रोसेस में उसको कम से कम 2 दिन लगते थे, 2 दिन 3 दिन। बट नाउ आई हैज़ कम, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी पे वही सारी चीज़ें अगर हम उसको डेटा दे दें, राइट, जो कि 5 मिनट 10 मिनट का काम है, वो हमें सेम काम जो 2 दिन में होता था वो 5 मिनट में करके दे रहा है, करेक्ट, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल कोई कॉपी राइटर है, ओके, जिसने 2020 में कोर्स किया, ओके, कहीं से भी कोर्स किया होगा, उसने सीखा, उसने अपनी स्किल्स को ग्रो किया, नाउ इज वर्किंग इन एज अ कॉपी राइटर राइट नाउ। वो अभी भी 2 दिन लगा रहा है कॉपीज लिखने में, अगर वो अपडेटेड नहीं है AI से। सो दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड नॉलेज टू द पीपल कि ठीक है, अगर आप कॉपी राइटर हो, आप इस टूल का इस्तेमाल करके आपके 2 दिन का जो काम है वो 1 दिन में आप कर सकते हो, 1 घंटे में कर सकते हो, तो बेसिकली यू वांट टू क्रिएट कंटेंट जो कि अपडेटेड भी रहे, राइट। सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट यू गोना क्रिएट जो कि एवरग्रीन हो, सम और स्ट्रैटेजीज गलतियाँ ना हो लोगों से। गलतियां ना हो, हाँ बट दैट इज बाउंड टू हैपन। मतलब हाउ कैन यू लर्न परफॉर्मेंस मार्केटिंग विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग इन फेलियर? यू कैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स फेलियर्स, राइट। Other people failure, okay, but every time don't you think the campaigns are different? Like for example, I'll just say, if you have good experience in real estate, हाँ जी, right, but then if somebody is doing something for apparel, let's say, so you're gonna share your experiences, but then the same logic doesn't apply to a different industry. There are certain I agree with nuances which gets different, right, in that path, and they हाँ have to figure it out themselves. Don't you think that plays a major role? obviously it plays a very important role. See, so what is happening, what is going to be happen Okay. is अगर मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस में शेयर करूँ, डेफिनेटली आई एम गोना डिफाइन कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ही वर्क करेगा। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट गूगल एड्स, यू ऑल्सो हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ इट। गूगल एड्स में डिस्कवरी कैंपेन करके एक कैंपेन टाइप है, Okay. राइट। वो परफॉर्म नहीं करता है Okay. ई कॉमर्स के लिए, ओके। बट अगर आप देखोगे रियल स्टेट में सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। Okay. इफ़ वी सी यूट्यूब कैंपेन्स, अगर आप किसी भी मार्केटिंग गुरु से पूछोगे, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि इट्स गुड फॉर ब्रांड अवेयरनेस। बट अगर सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए अच्छा है तो क्यों सिर्फ सैमसंग, LG, ये जो बिग ब्रांड्स है, सिर्फ वही कैंपेन क्यों नहीं रन कर रहे हैं, बाकी लोग भी क्यों रन करें? इफ़ यू सी ऑन यूट्यूब राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ कोचेस हु आर एक्चुअली रनिंग एड्स, Correct. राइट। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स हु आर एक्चुअली रनिंग एड्स। अगर वीडियो एड्स रन नहीं हो रहा होगा तो नीचे कराउजल हो रहा है, जो कि परफॉर्मेंस मैक्स से हो जाता है, राइट। इवन डिस्कवरी कैंपेन में भी कराउजल का एक टाइप होता है जो कि यूट्यूब पे दिखता है, राइट। लोग कर रहे हैं एंड इट्स वर्किंग एंड दे आर एक्चुअली रनिंग विद ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल, राइट। सो हाउ इट्स हैपनिंग, दैट इज सम स्ट्रेटजी बिहाइंड इट, Correct. राइट। ये कोई कोर्स में नहीं होता, Okay. ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा Tell या me तो खुद something. के। Tell me what is your fundamental of that strategy? Like, what is it that you are thinking that you're gonna teach or you're gonna tell to people, which they won't get it from a Failures. YouTuber from a previous video, like फेलियर्स, failures. Okay. फेल्ड स्ट्रेटजी। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च हुआ था, आई डोंट रिमेंबर कौन से साल में, बट इट वाज फॉर द बेवरेज इंडस्ट्री, आई गेस ट्रॉपिकाना। Okay. उनको मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, बट 3 मिलियन या 30 मिलियंस का उनको लॉस हुआ था जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी ब्रांडिंग चेंज की थी। Okay. सो व्हाट हैपन, सी इट्स अ बेवरेज ब्रांड, कहाँ पर बिकता है? रिटेल मार्केट में, शॉप्स में, लाइक डी मार्ट, रिलायंस बाजार, राइट, बिग बाजार, दोज काइंड ऑफ प्लेसेस। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग चेंज कर दी। पहले लोगों को दिख रहा था कि अच्छा ट्रॉपिकाना लिखा है, ये ऐसी पैकेज दिखती है, लोग खरीदते थे। जब उन्होंने ब्रांडिंग चेंज कर दी बिना सोचे समझे, लोगों को समझ में नहीं ये ब्रांड कौन सा है जो सामने रखा हुआ है शेल्फ पे। यू गॉट द पॉइंट। सो ये सारी गलतियाँ ना बिग ब्रांड्स भी करते हैं। एट द सेम चीज़ कोको कोला ने भी बहुत ऐसे
फेल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की है जिनसे उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न. इवन मुझे नहीं पता किसका कोट है, किसी महान पुरुष का ही है कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल डोंट लर्न अबाउट अदर पीपल्स सक्सेस, लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स फेलियर. ओके. बिकॉज वैन यू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स फेलियर आपको एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ नहीं करनी. आई एग्री. राइट. आप वो गलती करने से बच जाते हो. एट द सेम टाइम देर इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड एज अ वाइज पर्सन. ओके. An intelligent person is who do his research, okay, and implement it. And the wise person is who do the research, who understand कि भाई इसने ना ये गलती किया, ये गलती मुझे नहीं करना और आगे बढ़ना है. इंटेलिजेंट पर्सन ऐसा नहीं करता, वो गलती करता है और वो सीखता है. ओके. कई बार ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग को लेके एक एटीट्यूड में एक बहुत बड़ा गैप है लोगों के, जो कि जो माइंडसेट आना बहुत ज़रूरी है. राइट. वो एटीट्यूड, वो राइट एटीट्यूड, वो अप्रोच आना बहुत ज़रूरी है, जो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ नॉट अ गारंटीड थिंग. राइट. परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ बेसिकली a way you can put your product out there. Right. You can make it reach to people, but that doesn't guarantee the success of your product. Right. Ultimately your product sells itself. Right. That nuance is somewhere missing in people. That's something that I have noticed over the years. No matter how much good performance marketer you will hire, ultimately the success of the product will define by the product team or how much effort that you have put over the years. Right. ये एटीट्यूड शुरुआत से आना बहुत ज़रूरी है कि ओके, आई एम गोना इन्वेस्ट इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, दिस मच बजट आई एम गोना अलोकेट, बट देन आई एम गोना टेस्ट कि ओके, इससे अब मेरे प्रोडक्ट को किस तरीके से मैं इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है. देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म जिससे यू आर कलेक्टिंग दीज फीडबैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स के ओके, व्हाट कैन यू इम्प्रूव, वेयर दे आर फाइंडिंग डिफिकल्टी, इज ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोडक्ट और नॉट. राइट. डिफरेंट इंडस्ट्री जैसे B2B के अंदर अगर हम बात करें, जनरली कॉस्ट ऑफ लीड हाई होता है, और उस लीड को फिर उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद रिटेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. राइट. तो नो मैटर हाउ मेनी लीड्स यू जनरेट, नो मैटर हाउ मेनी क्लाइंट्स यू ऑन बोर्ड, if you want to retain those B2B clients, then other mechanisms are also very important. There you can't blame performance marketing saying कि भाई मेरे पास जो लीड आई उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, या वो इतने अच्छे क्लाइंट्स नहीं ला के दे पाया मेरा मार्केटर मुझे, कि मैं उनको रिटेन नहीं कर पाया. So that attitude has to be there from the day one. Yeah, performance marketing is a medium to reach people, to get those sales or get those leads. But if you want to make sure that long term में आपका business को उससे successful हो रहा है, benefit मिल रहा है, then you have to have that mindset कि how can you improve your product over the period of time. I got your point, बिलाल. इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ एक चीज़. सबसे पहले आपने कहा कि मार्केट में एक नुआंस बन गया. करेक्ट. कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो रिजल्ट आना ही चाहिए, और पूरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे ही डिपेंड होता है. ये लोगों का माइंडसेट बन गया. और ये माइंडसेट गलत है. बट ये माइंडसेट गलत क्यों है? किसने बनाया ये माइंडसेट गलत? ये मार्केटिंग एजेंसीज ने बनाई. राइट. सी हर टाइम पे ना क्या होता है, एक बंदा होता है, वो एक इंडस्ट्री पकड़ता है. राइट. उसमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है लोगों का प्रॉब्लम समझ के. फिर लोगों को दिखता है ओ भाई ये बंदे ने पैसा कमा लिया ये चीज़ करके. ओके. राइट. उसको देख करके 100 लोग और आ जाते हैं. इन डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो, इन दिस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडस्ट्री, यही चीज़ हो रही है. हर एक डिजिटल मार्केटर जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करता है उसको 1 साल के बाद में लगता है कि मैं अपनी एजेंसी खोल सकता हूँ. ओके. अब जो बंदा कहीं पे काम कर रहा था, मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक एजेंसी है जहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 25 लोगों का माइंडसेट ही यही है कि उनको एजेंसी खोलना है. हाँ, कि मैं 2 साल बाद में या 1 साल बाद में अपनी एजेंसी खोलूंगा. हर कोडर को ये लगता है कि वो अपना ऐप बना के सक्सेसफुल हो जाएगा. हर किसी को लगता है कि मैं मार्क ज़करबर्ग बन सकता हूँ. हर मार्केटर को ये लगता है कि वो अपनी एजेंसी चालू करके सक्सेसफुल. राइट. जनरली लोग उस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को भूल जाते हैं जो कि इन इंडस्ट्रीज में इम्पोर्टेंट है. हाँ जी. ऐप इटसेल्फ इज नॉट द प्रोडक्ट. हाउ यू आर मेकिंग दैट ऐप रन,
कितने लोग उसको अडेप्ट कर रहे हैं, कितने टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, कितना वैल्यू एक्चुअल में वो ऐप आपकी लाइफ में ऐड कर रहा है. दैट इज़ द प्रोडक्ट, राइट? दैट इज़ द वैल्यू चेन दैट यू आर कंटिन्यूइंग, राइट? राइट. जस्ट मेकिंग एन ऐप एंड थिंकिंग कि अब मेरा प्रोडक्ट और कंपनी चल जाएगा. सिमिलरली एजेंसीज के साथ भी सेम चीज़ है ना. आपने कोर्सेज कर लिया, आपको लग रहा है फेसबुक ऐड, गूगल ऐड आ गया. हाँ. एक एजेंसी के पास जाने का एक जनरल जो एक थॉट प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी का, वो होता है आउटसोर्सिंग, रिलाइंग. आप कितना रिलाय कर सकते हो किसी के ऊपर. एक टॉक्सिसिटी है एजेंसीज के अंदर, बहुत सारी एजेंसीज के अंदर, कि किस तरीके से मैं ये प्रूव कर दूं कि भाई गलती तो तुम्हारी थी. आई एग्री ऑन दैट एज वेल. बट पहले मैं आपका वो नुएंस वाली चीज़ को मैं इस पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ, अदरवाइज ये मिसलीडिंग हो जाएगा. गलती तो तुम्हारी थी. जनरली जो स्टाफ है जो कस्टमर से इंटरेक्शन करता है, राइट, उनको उस तरीके से ट्रेन नहीं करा जाता. और ये बहुत सारी गुड़गांव बेस्ड एजेंसीज, मुंबई बेस्ड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, उनको ये ट्रेन नहीं करा जाता कि आपको क्या बिहेवियर रखना है एंड क्या एक्सपेक्टेशन रखना है क्लाइंट के साथ. उनको सिर्फ ये है कि ओके परफॉर्मेंस डिलीवर करना है और उसके रिजल्ट बताना है, राइट? तो उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक थॉट प्रोसेस आता है कि मैं किस तरीके से इस मीटिंग में ये प्रूव कर दूं कि सर क्योंकि आपके एंड से ये चीज़ मिस थी, इस वजह से ये कैंपेन या ये पर्टिकुलर अप्रोच हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाई. रेदर दे कैन से क्रिएटिव का मिस था, प्रोडक्ट अच्छा नहीं था आपका, कुछ भी सीज़न नहीं है, या आपका बजट अच्छा नहीं था, राइट? जनरली एजेंसी का जो अप्रोच होना चाहिए वो इनेबलिंग होना चाहिए. नाउ आई एम एन एजेंसी, यू हैव नॉट फिगर आउट योर बिजनेस, राइट? आपको नहीं फिगर आउट हुआ कि आपकी मार्केटिंग प्रोसेस सही है कि नहीं है. इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू हाउ टू फिगर इट आउट, टू गाइड देम, टू इनेबल देम. एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंडस्ट्री राइट नाउ, हर किसी को लगता है कि मैं अपना मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकता हूँ, और लोग कर रहे हैं. करेक्ट. ठीक है, 1% एजेंसी स्टार्ट हो रही है, देन उसके बाद वो टीम बनाने की सोचते हैं. बट व्हाट इज हैपनिंग, दूसरों को प्रोजेक्ट ना मिले, ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए. पहला चीज़, मैं अपना रेट कम करूँगा. दूसरी चीज़, हाई एक्सपेक्टेशन सेट करवा दूंगा क्लाइंट को. अरे वो 3 का रोज दिलवा रहा है, मैं आपको 4 का दिला सकता हूँ. यू गॉट द पॉइंट. वहाँ से इन्वेंस बन गया कि ब्रांड्स को ये लगता है कि हाँ ये बंदा कर सकता है, अब ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग से मुझे रिजल्ट ला करके देगा. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस मार्केटर है वो सिर्फ फोकस कर रहा है कि मैं इसका एड स्पेंड करूँ, इससे मुझे 10% कमीशन मिलेगा, है ना, यही चीज़ पर उसका फोकस्ड है. और वो हर हफ्ते जो वीकली रिपोर्ट देता होगा या बाय मंथली रिपोर्ट होती होगी, 15 डेज में एक बार या 30 डेज में एक बार वाली जो भी रिपोर्ट है इनकी, वो रिपोर्ट का पैटर्न हमेशा सेम होता है. उसमें एड स्पेंड कितना हुआ, कन्वर्जन कितना आया, क्या ROS बना, क्या हमने इम्प्लीमेंट किया था, दैट्स इट. करेक्ट. राइट. सी, इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है. ओके. अगर कोई मार्केटिंग एजेंसी है तो उसका काम ये नहीं है कि एड स्पेंड कितना हुआ, कितना कन्वर्जन आया. वो तो डेटा डैशबोर्ड पे वैसे भी क्लाइंट को दिख रहा है डेली. वो खुद भी फेसबुक एड्स को ओपन करके देख सकता है. एंड फेसबुक एड्स, गूगल एड्स चलाना बहुत आसान है. परफॉर्मेंस मार्केटर, उनका मेन काम ये नहीं होना चाहिए कि एड स्पेंड कर दूँ, कमीशन ले लूँ, एक रिपोर्ट्स दे दूँ. दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि क्लाइंट ना ये महीना मेरे साथ में वर्क कर रहा है, और ये मंथ में मैं उसको जितना ज़्यादा उसके बिजनेस रिलेटेड डेटा प्रोवाइड कर सकता हूँ कि क्या वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा, कौन सी मार्केट आपके लिए सही है, आपने जो ऑडियंस अवतार चुना है, आपका जो बायर पर्सना है वो करेक्ट है कि नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ओनर को लगता है कि भाई मेरी जो मार्केट है वो 18 साल से लेकर के 60 साल का एक बूढ़ा इंसान, सबको मैं टारगेट कर सकता हूँ. बट दैट इज़ नॉट हैपन. फॉर मी एज अ मार्केटर, द नंबर वन थिंग विच शुड कम इन माइंड इज हाउ आर यू ग्रैबिंग अटेंशन. Correct. Because it's the process from where everything begins. You are saying कि आपको platforms पता है, you are saying आपको tools पता है, उससे marketing नहीं होती है. Your product, your value proposition, and how can you grab attention from that product or value proposition. किस तरीके का आप ऐसा content का piece बनाओ, छोटा सा वीडियो बनाओ या कुछ भी बनाओ जिससे आपकी लोग आपको attention दें, and from there you can generate some momentum from that attention, and you can then expect people to come in and check out your product, and then expect more traction on that. Attention is the new currency. Attention is the currency. Correct. You have mentioned that you use GPT. Everybody know how to use GPT, so let's not cover that. Everybody knows how that tool work.
Sam Altman, the person who founded, he was the CEO of ChatGPT. He was also the founder, Yes. if I'm not wrong. He recently got fired, and that's a big news. Everywhere you'll see that news is big. Why do you think that happened? Do you know? No, I don't know exact answer, but what I can say, once the company is big enough, lot of time what happen, investors CEO को पहले replace कर देते. Just recently I was watching one documentary. I guess it was about Uber के ऊपर था. Okay. So Uber के जो फाउंडर है उनको भी हटा दिया गया था. Okay. एंड उनका तो ऐसा था कि उनका तो मतलब कार्ड जो होता है बिल्डिंग में एंट्री करने का, वो कार्ड तक के ब्लॉक कर दिया था उन्होंने. Why? What he did? नथिंग, सिर्फ उनकी Must इमेज have done something, of course. उनकी इमेज थोड़ी सी बैड हो गई थी. Okay. ओके. एंड अगर हम देखें मनी पार्ट के हिसाब से, सो फाइनेंशियली उस टाइम उबर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट स्टिल उनको हटाया गया. So a lot of people don't know, like Elon Musk, people who used to follow him, they already knew about OpenAI. Like when I used to search for Elon Musk in 2015 or 16, OpenAI, he invested in that company. Yes. Correct. And OpenAI, why he invested? Because OpenAI was open source, as the name suggests. OpenAI was open source. Yes. Right. They developed it. They did a lot of research, and the intention was to make these technologies available in public via open source technologies. And but that didn't happen. Once bigger corporations comes into picture, इन लोगों ने इसको close source कर दिया. Right. Because of course the technology was so good that making it open source was not the wise decision. And I think that somehow plays a big role in company किस तरीके से अब change हो रही है. Because ChatGPT been around 1 year, more than that, and I don't know, maybe less than 1 year. More than 1 year. More than 1 year. Yes. Yeah. जिस तरीके से कंपनी इवॉल्व हो रही है, आई थिंक और कमर्शियल होगी, हो ही रही है, राइट. विंडोज 10 के अंदर, विंडोज 10 के न्यू अपडेट्स के अंदर, सॉरी 11 के न्यू अपडेट्स के अंदर, आगे गया उसके अंदर को पायलट के अंदर इंटीग्रेशन है, बिंग चैट के अंदर इंटीग्रेशन है, और जितने भी एआई के मैक्सिमम टूल्स हैं बैकएंड में आप देखोगे, थोड़ा सा भी पढ़ोगे, जीपीटी बेस्ड ही हैं. राइट. तो कंपनी तो बहुत बड़ी इवॉल्व हो गई है, एपीआई उसकी बहुत वाइडली यूज़ हो रही है, एंड और कमर्शियल होगी, और ज़्यादा इसको अलग डायरेक्शन में लेके जाएंगे. तो वो जो एक ओपन सोर्स का माइंडसेट वाले जितने लोग थे, धीरे धीरे वो लोग डिस्कनेक्ट ही होंगे, कॉपरेशन की डायरेक्शन में जाएगी. हाँ जी. सी ये चीज़ ना हर बिजनेस में होता है. अगर आप फेसबुक में देखोगे, नॉट फेसबुक एग्जैक्टली, फेसबुक तो अब एग्रीगेटर है एक्चुअल में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. मेटा. या मेटा. व्हाट्सएप. यस. व्हाट्सएप को कभी भी ब्राइन एक्शन नहीं चाहते थे. 2 फाउंडर थे व्हाट्सएप के. करेक्ट. ब्राइन एक्शन एंड जेन कॉम. ओके. ये दोनों कभी नहीं चाहते थे कि वो कभी मोनेटाइज हो. करेक्ट. ओके. एंड इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आई गेस ब्राइन एक्शन वो एक टाइम पे फेसबुक में इंटरव्यू देने गए थे, एंड ही गॉट रिजेक्टेड. बोथ फेसबुक एंड ट्विटर. Okay, he got in Twitter as well. Okay. Twitter, both places he got rejected. So he got rejected. See, rejection कभी कभी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है. इंस्पिरेशनल होता है. राइट. उन्होंने अपने लिए एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया. इट वाज अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन. कुछ ज़्यादा ये कश्मकश नहीं थी उसमें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं, काफ़ी शाइनी ऑब्जेक्ट्स नहीं था, काफ़ी सिंपल था. जैसे आप SMS करते हो, टेक्स्ट SMS, वैसे आप व्हाट्सअप कर सकते हो. करेक्ट. और इट इज़ गोइंग टू बी फ्री. WhatsApp started, I think I heard one of his interviews, to check the status of your friends. Really? What they're doing right now. Okay. I didn't knew about this thing. So if you're traveling, let's say, तो earlier internet was not that connective ना. ऐसा नहीं था 24 घंटे इंटरनेट पे हो, और होगा भी तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता था यूज़, राइट. So you just put your status, I'm driving. Okay. So if your friends are looking at your status, so they will know कि okay he's driving, or at the movies, or at the gym. तो अगर आप WhatsApp के लेगेसी के स्टेटस देखोगे ना, अबाउट जिसको आप बोलते हैं, तो उसमें ये ड्राइविंग, एट द जिम, एट द मूवीज, बाय डिफॉल्ट होता है ये. स्लीपिंग, ये सब बाय डिफॉल्ट है. वो लेगेसी है पुराने, पहले से वो चल. Okay. When this thing became popular, तो earlier it was a closed source rollout to his friends and close ones, but then when it became little big, तो he introduced messaging and then rest is history. So हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि व्हाट्सअप एक ऐसी एक एप्लीकेशन आएगा जो SMS इंडस्ट्री को बदल देगा.
राइट? और इतनी हाई व्हाट यू से एग्जैक्टली वैल्यूएशन पे चला जाएगा. हु हैज़ थॉट कि एक बंदा जो ट्विटर और फेसबुक में जॉब ढूंढने गया है, वो 19 बिलियन एक ऐप को बेच करके कमाएगा. करेक्ट. सो Right. अगेन यू नो हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. इंटरनेट कंपनीज, टेक कंपनीज कितनी जल्दी कितनी बड़ी हो जाती हैं, ये तो हिस्ट्री ऑफ आई थिंक ह्यूमन काइंड में कभी nobody would have imagined. See, there is always a pattern. Pattern is all about what is the problem of the market and how you can solve it with a new idea. Solution तो पहले से है Correct. मार्केट में, ठीक है. अगर हम फार्मिंग की बात करें, एग्रीकल्चर की, तो सॉल्यूशन पहले से है कि भाई खेती ज़्यादा नहीं हो रही, कुछ केमिकल डाल दो, हो जाएगी. ठीक है, जगह कम पड़ रही है, और जगह खरीद लो, हो जाएगी. वर्टिकल फार्मिंग का किसने सोचा, राइट? बट कोई बंदा होगा जिसने वर्टिकल फार्मिंग के बारे में सोचा, उसने थोड़ा सा रिसर्च किया. Correct. नाउ इफ़ यू सी वर्टिकल फार्मिंग इज बूमिंग अलॉट. It's booming. अगर आप दुबई में देखोगे, रेगिस्तान में वो लोग वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं. क्यों? पहली चीज़, वहाँ पे रियल एस्टेट महंगा है. रेत में फार्मिंग आप कर नहीं सकते हो. व्हाट दे आर डूइंग, गोडाउन बड़ा बड़ा बना लिया, ठीक है, अंदर थोड़ी सी लाइट्स लगा दी, टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया, और वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं. Okay. आज लोग, अगर हम इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जो 2 लाख 3 लाख आराम से कमा रहे हैं घर बैठे बैठे. Okay. क्यों? क्योंकि उनके पास में घर है, ऊपर टेरेस है, टेरेस पे लोग ने वर्टिकल फार्मिंग शुरू कर दिया. सी, सो हर एक प्रॉब्लम का ना कुछ ना कुछ नए solution. तरीके से सॉल्यूशन आप कैसे लेकर आ सकते हो, That is वो what इम्पोर्टेंट है. entrepreneurship is all about. यस. Right. सो व्हाट्सएप ने भी वही चीज़ किया. पहले क्या होता था, हम एसएमएस खेलते थे, राइट? पेजर का टाइम था. पेजर का पेजर था, के बाद मोबाइल आया. SMS पॉपुलर हुआ. व्हाट्सएप से भी पहले बहुत बड़ा मैसेजिंग ऐप हुआ करता था, BBM. यस, बट दैट इज फॉर BlackBerry ओनली फॉर Messenger. ब्लैकबेरीज मोबाइल, Correct. राइट? सो बीबीएम का यही था कि आई एम वेरी एक्सक्लूसिव. The edge आपको with use करना WhatsApp है. happened with it cross platform availability. यस. WhatsApp was available for BlackBerry, Symbian, वो छोटे छोटे फोन जो Nokia के मैंने आते थे, मेरा पहला Android, iOS, व्हाट्सएप ऐप everywhere. जो एक्सपीरियंस रहा वो सिम्बियन फ़ोन पे ही रहा है. Correct. मैंने सिम्बियन फ़ोन पे ही पहले व्हाट्सएप चलाया. जिनको नहीं पता, Symbian वो Nokia के फोन में जो पहले OS होता था उसको Correct. Symbian बोलते थे. राइट, राइट. तो क्रॉस प्लेटफॉर्म होने से उसको बहुत बड़ा एज मिला, एंड देन Right. इट बिकम अ पॉपुलर थिंग. एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द ऐप वाज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इन द मेकिंग. Yes. हाइक करके एक ऐप आया था, राइट, मैं उसके बारे में बोलने वाला था. उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया. एक्चुअली app वो को- लोग जो थे, आई गेस एयरटेल का ही, एयरटेल के ओनर ने ही स्टार्ट करवाया था. ओनर नहीं है, Hike. सन ओनर के सन ने. सो ओन अपने विजन से भटक गए थे. उन्होंने स्टार्ट तो किया था विथ अ मैसेंजर प्लेटफॉर्म, बट आगे चल करके वो उसमें कूपन दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आ रही है. उनका एक कैंपेन था अप्रैल फुल में कि आप बटन दबाइए और आप उसको ना शेक करके स्मेल करिए, तो जो भी आपको फोटो दिख रही है उसकी आपको स्मेल आएगी. डैट वॉज अप्रैल फुल वाली चीज़, वो चीज़ समझ में आती है. बट उन्होंने इतनी सारी चीज़ डाली, स्टिकर डाल दिया, अलग अलग फीचर्स लेकर आ गए. तो हाइक वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम, करेक्ट. राइट? इफ यू रिमेंबर दे इम्प्लीमेंटेड स्टिकर, राइट? वाइबर उससे पहले ले आया था, बट फिर भी हाइक उसी टाइम पे लाया था. उस व्हाट्सएप में बहुत बाद में आया कंपेरेटिवली. हाइक का एक मार्केट बना हुआ था. करेक्ट. पेमेंट, राइट? पेमेंट की जो चीज़ है, हाइक उस टाइम पे लाया था. व्हाट्सएप ने काफ़ी बाद में लाया, जब UPI फेमस होके इम्प्लीमेंट हो गया, Correct. टेस्ट एंड सक्सीडेड था, तब व्हाट्सएप पेमेंट की चीज़ें लाया इंडिया के अंदर. हाइक ने बहुत पहले लेके आया था बहुत सारी चीज़ें. वो वीडियो कॉल हाइक व्हाट्सएप से पहले लाया था. लोगों को नहीं याद कि व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल बहुत बाद में लाया है. इफ़ यूल रिमेंबर, कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स व्हाट्सएप के अंदर शुरुआत में नहीं थे. इट वॉज नॉट द थिंग ओके. विच यूज टू हैपन. लाइक मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि हाइक में पहले आया था कि नहीं, बट हाँ, हाइक ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उसने टेस्ट एक्सपेरिमेंट करना, फेल होना, करेक्ट. तो वो जो फेल होने वाली जो जिसकी जर्नी है, उसने उस पूरे एप्लीकेशन को फेल किया. सी व्हाट हैपन, एक और चीज़ थी. हाँ, आप कंटिन्यू. विजन ना बार बार उसका चेंज हो रहा था. मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा था. ओके, सो डैट कैन नॉट बी हैपन. आपकी एक आइडेंटिटी बनती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ब्रांड है, अगर मैं बात करूँ मैकडोनल्ड्स की, तो उसकी आइडेंटिटी बनी हुई कि वो बर्गर बेचता है, राइट? कल को अगर वो पिज़्ज़ा चालू करेगा तो मैकडोनल्ड्स लोग नहीं पहचान पाएंगे. क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले से डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, राइट? अगर उसको करना है मैकडोनल्ड को,
So what he can do, he can start another brand, just like Wow has did. Wow का मोमोज का है, Wow ने एक अलग ब्रांड स्टार्ट किया, Wow चाइना. क्यों? क्योंकि सेम ब्रांड के नाम से, Wow मोमोज के नाम से वो चाइनीज नहीं बेच सकता. करेक्ट. दिस इज हैपनिंग. अगर हाइक को सक्सेसफुल होना था, सो व्हाट ही कैन डू एट दैट टाइम, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, साइमल्टेनियसली वो दूसरा एक प्लेटफॉर्म रखता, पेमेंट के लिए हो गया या जो भी जिसके लिए वो ट्राई आउट कर कुछ तो कर सकते थे. राइट. राइट. इसको इससे उतनी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी. एक तो उन्होंने वैल्यूएशन भी बहुत जल्दी बढ़ा ली. हाँ. राइट. कस्टमर को प्लेटफॉर्म पे लाने का उनका जो गिमिकी तरीका था वो भी एक बहुत बड़ा मेजर उसमें था. अब जैसे सेम स्ट्रैटेजी पेटीएम ने यूज़ करी थी. क्या आप अगर साइन अप करवाते हो किसी को पेटीएम पे तो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये आपको मिलता था उस इट्स अ ग्रोथ हैक. हाँ, इट्स अ ग्रोथ हैक, रेफरल जिसको आप बोलते हो. बट हाइक ने भी वही सेम चीज़ करी. एक चीज़ जो मिस कर गए कि 25 अलग अलग ऐप यूज़ नहीं करते हैं लोग चैटिंग के लिए. जनरली आप एक ही पे स्टिक करते हो जहाँ पर मैक्सिमम आपके लोग होते हैं. अब जैसे यूएस में लोग व्हाट्सएप कम प्रेफर करते हैं, आई मैसेजेस. यस. राइट. जो वो ब्लू बबल ग्रीन बबल वाला जो वहाँ डिबेट है, आई मैसेजेस जो आईफोन के ऊपर होते हैं, राइट, वो ज़्यादा है. वहाँ पर व्हाट्सएप कंपेरेटिवली कम है. वहाँ पर भी बहुत है, ऑफ कोर्स यूएस का ही प्रोडक्ट है. आप देखोगे तो ज़्यादा है. स्नैपचैट आजकल बहुत ग्रो हो रहा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज. मिडल ईस्ट. यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट. करेक्ट. एवरीबॉडी इज जस्ट यूजिंग स्नैपचैट देयर, राइट. व्हाट्सएप ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था, सक्सेसफुल था इंडिया में, राइट. पेटीएम जब आया, पेटीएम की तरीके के ऐप्स इतने पॉपुलर नहीं थे. मोबीक्विक आया था. पेटीएम जो था वो भी अपने टाइम से आगे था बहुत लेकिन क्योंकि उसने सर्वाइव मुझे अच्छे से याद है पेटीएम की जो यूटिलिटी फीचर्स थे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उस टाइम पे, वो हर जितने भी ये आइडिया का ऐप आ गया, एयरटेल का ऐप आ गया, उसके अंदर जो फीचर्स सेम थे पेटीएम में भी वही थे. बट उसके लिए ही एक ऐप होना उतना नहीं थे वैसे वाले ऐप. ये सिर्फ मोबाइल रिचार्ज के लिए एक ऐप होना, तो वो पेटीएम उसमें वन ऑफ द फर्स्ट. पेटीएम में मतलब बहुत सारे एंड फीचर्स थे देन पहले से. आफ्टर डीमोनेटाइजेशन पेटीएम, डीमोनेटाइजेशन ही वो टाइम था जिसमें पेटीएम बहुत जिसके से growth हुआ. पेटीएम को बूम मिला. करेक्ट. ठीक है. उसके पहले पेटीएम जब भी स्टार्ट हुआ है, इट वाज लाइक कि हाँ लोग, एक टाइम आएगा जब लोग डिजिटल करेंसी प्रीफर करेंगे, लोग डिजिटली पेमेंट करना प्रीफर करेंगे. बट डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तब वो टाइम आ गया, और वो टाइम फोर्सफुली आया इंडियंस के ऊपर. ठीक है. आप बैंक में ज़्यादा पैसे डाल नहीं सकते हो, ज़्यादा पैसे निकाल नहीं सकते हो. Correct. व्हाट यू कैन डू द डिजिटल पेमेंट. अब उस टाइम पे कितने ऐप थे? बहुत कम. मेजर ऐप वॉज पेटीएम. करेक्ट. ठीक है. अगर आपको सब्जी लेनी जानी है, वहाँ पे पेटीएम ही अवेलेबल था. फ़ोन पे, मोबाइल पे लोग थोड़ा बहुत यूज़ करते थे. आई गेस उस टाइम पे तेज़ करके ऐप आया था, विच इज़ नाउ नोन एज गूगल पे. तेज. यस. हाँ. यस. करेक्ट. तेज़ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उसी टाइम के अराउंड आया था. ठीक है. तो पेटीएम ने पहले से अपना मार्केट बनाना बहुत साल पहले से शुरू कर चुका था. लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन आया तो वो तब उसको उसकी वो मेहनत रंग लेकर आ गई लेवरेज मिला. कि हाँ वो लेवरेज उसको मिल गया कि भाई उसने पहले से मार्केट को कैप्चर करके रखा है. अब वो टाइम है लोगों को पेटीएम की वैल्यू समझ में आएगी. ठीक है. और जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ, लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, लोगों का ना एक हैबिट बन गया. हाँ. अभी आप एक चीज़ बताओ, हैबिट की अगर हम बात करें तो पहले हमारी हैबिट क्या थी? हम इंटरनेट ऑन करते थे, चेक करते थे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, नोटिफिकेशन क्या क्या आया, इंस्टाग्राम पे. ठीक है. ऑन बंद कर देते थे डेटा को. राइट. क्यों? क्योंकि महीने का हम 1 GB 2 GB डेटा बाय करते थे. हमारे डेटा प्लान्स ऐसे होते थे, महीने का सिर्फ 1 GB आता था, 2 GB आता था मुश्किल से. उसके लिए भी हम अच्छा खासा पे कर रहे थे, 200-250. व्हेन जियो केम, उसने सबसे पहली चीज़ क्या की? हैबिट ही चेंज. हमारी हैबिट चेंज की. अगर आज आप देखोगे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना डेटा दिन भर चालू रखते हो. क्रेड ऑल्सो डिड द सेम थिंग बेसिकली. Yes. क्रेडिट So, कार्ड habit का change करना रीपेमेंट का बहुत जो इंपॉर्टेंट है. हाँ क्रेड ने जब वहाँ पर डीमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों की हैबिट बदल गई. जहाँ लोग कैश में प्रेफर करते थे पहले, अब लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं. करेक्ट.